नमस्कार, मैं आपका आलोक रंजन। कल का मेरा अनुभव थोड़ा बहुत अच्छा नहीं रहा। टेक्निकल चीज़ों को लेकर के थोड़ा मैं जो चाहता था आपसे इंटरेक्ट करना वो नहीं हो पाया। लेकिन आई गॉट दैट हिंचमैन ऑफ माई ऑल दिस स्टूडियो टुडे। तो ही हैज़ डन एवरीथिंग परफेक्टली फाइन। आई होप इट वर्क्स फॉर द डे। मैंने कल एक मुद्दा उठाया। My issue was the results are not showing linguistic discrimination. मेरे हिसाब से भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। और मैंने जो एक टोटल सर्वे लिया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग आ रही है पिछले 5 वर्षों की, आई एम फाइंडिंग all the vernacular languages have taken a dip in terms of the success. Even Telugu, even Gujarati, even Tamil, even Kannada. So all those people, all those students who have been writing in their vernacular medium, they are not reaching to that success level. The irony is, those people who have a rural base, they generally use the vernacular languages, the languages of their respective states. अपने अपने राज्यों के अपने अपने जो लैंग्वेजेस हैं उसका उपयोग करते हैं ये छात्र। कोई गुजराती मीडियम से लिखता है, मैंने देखा है गुजराती मीडियम से 20-25 छात्रों को क्वालिफाई करते हुए। तेलुगु मीडियम से बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशंस होते थे, पहले लोग क्वालिफाई करते थे। इवन तमिल वॉज ए वेरी सेलिब्रेटेड मीडियम फॉर सिविल सर्विसेज। इवन द लिटरेचर्स वी आर डूइंग सो गुड। लिटरेचर लोग लेकर के, गुजराती लिटरेचर लेकर के, तेलुगु लिटरेचर लेकर के, तमिल लिटरेचर लेकर के, इवन मलयालम, दे यूज टू टॉप the competition. Now what is happening is that there is a sharp decline in terms of the success with vernacular language and script, and also a sharp decline among the rural folk. This year result is showing that hardly 5% people have qualified from the languages which regional languages which they use at their state level, and 95% people are all English medium students. Now who are these English medium students? I tell you one interesting fact which has come through different surveys on internet which I found. Some of the surveys have come directly from the Lal Bahadur Shastri Academy, and some of the surveys have come from my talks, my personal talks with the successful candidates. I still keep talking to many people. The survey is revealing one interesting fact, that people who live in NCR region, who have their permanent resident in the NCR region, have made the best results have come from the NCR region. Now what is the mystery behind it? क्या रहस्य है इसका? आखिर NCR के रीजन में रहने वाले लोग, ये अर्बनाइट्स, ये नगरीय लोग, यही और इनके बच्चे ही क्यों क्वालिफाई कर रहे हैं? इसके पीछे का रहस्य क्या है? ये संवेदनापूर्ण विषय हो सकता है, ये भावनात्मक विषय हो सकता है कि हिंदी माध्यम के लोग को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो हिंदी माध्यम एक आंदोलन। हिंदी माध्यम के लिए तो मेरा हृदय है ही, लेकिन हिंदी माध्यम के छात्रों को, इवन गुजराती मीडियम पीपल, इवन तेलुगु मीडियम पीपल, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट अबाउट द discrimination on the basis of languages. It is probably this discrimination is the outcome of these results are this huge ratio gap of success and unsuccess is the outcome of maybe the grooming of the people, maybe the nurturing of the students, maybe their living conditions, maybe their lifestyle, the way they think, the way they perceive things, maybe their internal insecurities, maybe the parental pressure which the rural folk experiences more than the urban ones, because urban people have one plan B also.
If they don't qualify in civil services, they have plan B for themselves. They are qualified. If you look at a list of the successful people, you will find that MBBS, MBA, IITians, and Delhi University students, and Chennai University, the Kolkata University, they're all on a rise. Most of the seats are now taken by these students from brilliant universities of our country. So the students who are studying in the rural areas, who are not really blessed with opportunities in their life, students from Allahabad University, which is definitely under decay. Allahabad was the Oxford of the East. इलाहाबाद को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते थे, लेकिन वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट है, उसमें लगातार क्रिमिनलाइजेशन का होना, लगातार राजनीतिकरण, पॉलिटिक्स का आना, इसके कारण स्टूडेंट्स के माइंड में पॉल्यूशन, स्टूडेंट के माइंड में एक अलग सा मुझे वो दिखता है, मैं कैसे बताऊँ इसको, मुझे दिखता है कि वो एक अलग सा उन्माद, एक अलग सा एक अलग सा एंगर, एक अलग सा ईगो, एक अलग सा नैरो थॉट्स, काफ़ी संकीर्ण विचार राजनीति के कारण, जातिवाद के कारण, बढ़ती हुई हिंसा के कारण, इसके कारण उनके सोच या तो डरे हुए से नज़र आते हैं या संकुचित नज़र आते हैं। अब मानते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, लेकिन जो आज का यूपीएससी है, जो आज सिविल सर्विसेज की डिमांड है, आज जो ब्यूरोक्रेसी का डिमांड है, आज जो क्राइटेरिया यूपीएससी ने फिक्स किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार उनका कहीं न कहीं एप्टीट्यूड, कहीं न कहीं एटीट्यूड, कहीं न कहीं उनका सेल्फ, कहीं न कहीं उनकी पद्धतियाँ, उनका जो पढ़ने का सिस्टम है, ये सब कुछ थोड़ा अलग सा हो रहा है। और ये सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इलाहाबाद के लिए सत्य नहीं है, ये तिरुचिरापल्ली में भी हो रहा है, ये कोट्टयम में भी ऐसा ही हो रहा है, ये पटना में भी हो रहा है, ये जयपुर में रहने वाले स्टूडेंट्स के साथ भी हो रहा है, ये सब जगह हो रहा है। मुझे बहुत ही ऑनेस्टी और फ्रैंकली बात करने की आदत है। मेरे स्टूडेंट जो मुझे बहुत मानते हैं, उनको सब मालूम है, और बहुत इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू टॉक ऑन दिस लाइन्स, बिकॉज व्हाट इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू डू टुडे इज़ टू प्रोवोक द हिंदी मीडियम पीपल, प्रोवोक द रूरल फॉक। मैं बहुत अच्छा भाषण दे सकता हूँ कि मेरे जो हिंदी भाषी छात्र हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके ये पढ़ना होगा, वीर रस में मैं उनको बताऊँ कि तुम्हें 18 घंटा पढ़ना होगा, मैं पढ़ूँ, मेरा नोट्स पढ़ो। आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू चेंज एनीथिंग अबाउट देयर फॉर्च्यून्स, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। वो चेंज जो उसमें लाना होगा, जो बच्चों को जो चेंज करनी है, वो अपने कहीं न कहीं अपने साइकोलॉजी में, कहीं न कहीं अपने मेथड्स में, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द टीचर्स एंड द इंस्टीट्यूट्स, यू शुड टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय योरसेल्फ। खुद पे थोड़ा उत्तरदायित्व लेना चाहिए। आई एम द सेम टीचर हु इज़ टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, आई एम द सेम टीचर हु इज़ टीचिंग इवन मोर फोर्सफुली, इवन मोर आवर्स, even more strategically with Hindi medium students. But the English medium students give me more result, and Hindi medium results are confined to few. I tell you, few. The last big result which came from Hindi medium was 38th rank, Shailendra Singh Indaulia. He was my very dear student, very favorite student. Vikas Meena was last year, and there are many names will be there. I don't have to pronunciate their names today. But the results are actually decaying with time for the Hindi medium people. Now, as I told you, I don't see it as a Hindi-English divide. I simply see it as a rural-urban divide, which is emerging in India. This is new India, where you have urbanites, the rich, the haves, and you have the second India, the Bharat, which you call, the Hindustan, which you call, which is the have-nots. Not really the poor, but those who have no access to scientific education, skilled education, technological education. They have no access to it, no access to good teachers. Now, that is what creates the real difference in your persona. I tell you one thing. I have made a chart of certain points
which came in my mind. I was just giving it a thinking. What actually is this? The regions which are differentiating between the rural people and the urban people of India, or I should call it the students from rural background and the urban background. Now, certain key points I have for you. I will go to the chart and look. Success is the function of hard work, perseverance, confidence, perchance, and entropy. I have not taken this formula from some Edward Swiss or some great Goldman or some psychology book. This is my concept, my experience. Now look here, hard work, all of you are doing it. Hard work, most of you do it. Now what is hard work? When you are sitting 10 hours on a chair with a lamp, that's not hard work. Hard work is one, when you take out the book A, book B, book C, and look at the same chapter all where, and you are jotting down the key points, then it's a hard work. Without getting fatigued. मैंने बताया कि अगर आप किसी एक विषय पर 3 अलग अलग पुस्तकों को लेते हो, उससे की पॉइंट्स को एक पेपर में लिखते हो, उसका एक फाइल बनाते हो, ये हार्ड वर्क है। स्टेज 1 यही होता है तैयारी करने का। आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, वो सबको मालूम है। After going through NCERT, you have to see the syllabus of UPSC. Now take your first, say for optional or for even GS, read the syllabus prescribed by your UPSC. So that's your first topic. So write the first topic. Now don't search internet on it, because Wikipedia may provide you some absurd informations and haywire informations. So random there. So it is better you take some good book. Ask me for a book or ask any good teacher for a book. He will subscribe you certain books. So we'll have 2-3 books together. Now open the chapter number 1 and start writing. So when you write the key points, introduction, then write the key points, all diagrams, whatever facts are there. Even if the facts are old, don't crumble. You simply write the facts, even older facts. If it is 2005, 10, still write, because there you can add upon from different sources. कहीं ना कोई सोर्स मिलेगा तो तुम उसमें ऐड कर लोगे ना, तुम्हारा नोट्स तो परफेक्ट हो जाएगा जब तुम उसको रिवाइज करोगे. नाउ दिस इज हार्ड वर्क. नाउ second challenge is perseverance. Hard work for a day or two doesn't work. You have to work for years. I'm serious. You have to work for years. All those people who have qualified, they have gone through this severe process almost for 2, 3, 4, 5, 7 years. So this examination is actually really tough, toughest nut to crack. Now, all these 3 years or 2 years, depending upon your quantum of work, your quality of work, तुम कैसे गुणवत्ता से पढ़ रहे हो, किस तरह का कितनी मात्रा में पढ़ रहे हो प्रतिदिन के हिसाब से, this all will determine the time period, the gestation period which will be taken for the complete preparation for civil services. Then you have to appear in the examination. Don't go don't go through these rhetorics of reading NCERT and some notes from some coaching institutes and some books from half-heartedly read, underlined things, and nothing you remember. Randomly you remember a few things from Iran, and then you go for the examination, so you don't make it to the biggest level. So the idea is that your hard work should be, followed by perseverance and then confidence. What happens even I was a student, मैं भी कभी a student था. So as a student, when I will read, I will be shaking all the time, whether this will come or not, whether this will be the correct thing or not, whether this will come, whether this is correct way to read or not. These thoughts will be all hovering around my brain. As a student, I am telling you. So it creates confusion. But actually you should be confident enough, and trust me, this confidence is the real key to the success. So when you read, you be confident. This is what will be asked by civil services. This is what will be asked by the UPSC. यही पूछेगा मुझे, यही आएगा, पक्का आएगा. Be positive.
यही आएगा, यही पूछेगा, नहीं पूछेगा, लेकिन वो तुमको एक स्टेप देगा. यू विल मूव फॉरवर्ड वन स्टेप विथ बाय लर्निंग. बट व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ और ऑन द रिटन ऑन द बुक itself, on the material itself, then you are shaky and nothing you are going to memorize. It's the most common problem. Sir, I read but I don't memorize. Now this is the solution. You be confident. Trust the book. Yes, I am reading. This is what I have to read and this is what will be asked by civil services. That's the key to your success. Now coming to this point, perchance and entropy. These two are unseen variables, totally not in our hand, out of control. We don't govern these 2 points. One is perchance, which you call as fate, जिसको आप कहते हो भाग्य, जिसको आप कहते हो डेस्टिनी. मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो देयर इज ए होल एंड यू हैव सम 10 balls, कंचा, you have some 10 कंचा. Now you throw towards that hole. So as you throw, all will have the same velocity, all will have the same direction, but one will go inside, rest will bang and come back, bounce back. This is the reality of life. Not all will enter that hole. उस एक छोटे से छिद्र में सभी कंचे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, जबकि उनका वेलोसिटी, उनकी गति, उनकी दिशा. तो अगर तुम हार्डवर्क, परसिवरेंस, कॉन्फिडेंस सब कुछ तुम्हारे पास है, तब भी हो सकता है कि तुम यूपीएससी में क्वालिफाई नहीं करो. रोना मत, क्योंकि रोना, यूपीएससी इज नॉट योर डेस्टिनी, यूपीएससी इज नॉट योर गोल, यूपीएससी सक्सेस इज नॉट योर अल्टीमेट साल्वेशन. यूपीएससी इज सिंपली the means to get to another level of life, another level of success. It gives you opportunity to serve the people at large. UPSC will put you at a place where you can actually deal with thousands and maybe millions of people, and you can change their fate. It's a kind of public service. This is how it is called, UPSC, Public Service Commission. Now, perchance is that what? Is that fate, that destiny, and entropy is that randomness, the degree of disorder. Now, I can explain you with an example. You are going for an interview and you meet an accident. Now, this was randomness. This was entropy in your life. Now, you cannot prevent it. This is not in your hand. You cannot do anything about it. So, don't cry again, because entropy is not under your control. ये जो entropy है ना, यादृच्छिकी जिसको कहते हैं, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता है. ये इंट्रोपी एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा कारक है जो इंसान की लाइफ में कभी भी हो सकता है. अभी हम बाहर निकलें, सीढ़ियों से गिर जाएं, टांग टूट जाए. न मेरा कोई दोष, न सीढ़ियों का कोई दोष, क्योंकि इन्हीं सीढ़ियों पे मैंने कई हज़ार बार चढ़े हैं, आज तक तो कुछ नहीं हुआ. सो इट्स नेवर इन योर कंट्रोल. सो ऑलवेज आई बिलीव दैट यूपीएससी सक्सेस विल बी the function of hard work, perseverance, confidence, perchance, and entropy. I hope you understand this. Now we're going to the second point of discussion, intuition theory. Intuition theory. What is intuition? एक example लेते हैं. So you are in the fray, you are in the competition of prelims, you are sitting, the question papers have been distributed. Here is the question paper in your hand. Now you are reading the first question. So you are reading A, B, C, D. There are four options there. Now A, you felt that, oh, A is correct. It seems correct. But when you read B, C, D, you become confused. Meaning your intuition is saying A, but B, C, D reading is making you more confused. You are shaky. Now you are not able to conclude whether it will be A or B or B or A. So based on the hunch, even people like us, we used to do based on the hunch and intuition. We like to, oh, A, because that was the first thing which struck my mind. So I used to do A, and most of the time I found that it was correct. Most of the time, not all the time. इंट्यूशन का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन पेपर को देख रहे हो, क्वेश्चन पेपर मिला और उसमें आपने देखा ए. अब जो ए आया है वो, उसको पढ़ने से आपको फील हुआ कि यही है, यही सही लग रहा है, हाँ यही है. लेकिन बी, सी, डी पढ़ते पढ़ते आपको लगा ना ए पे डाउट्स है.
बी सी होगा, बी होगा, सी होगा, ये करते करते आपने बी लगा दिया। तो ये आपने इंट्यूशन का सहारा नहीं लिया। नाउ आई मस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज इंट्यूशन। दोज पीपल हु हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आर एक्चुअली very confident people also, and they work, they go along, they treat the path of their intuition, they treat the path of their, the mental guidelines which are created inside him. इंट्यूशन का मतलब है, इंट्यूशन क्या होता है मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आई सॉ वंस माय फादर वोक अप लेट नाइट 2:30, it was morning, मतलब he was sleeping, we all were sleeping. The telephone was ringing, cring cring cring. He got up and he said, लगता है सुनील भाई का मर्डर हो गया है। And that was the purpose of that call also. So we all were awestruck कि how father knew this. But then I realized after 10 years, 15 years of reading a lot of things in psychology, then I realized that this intuition developed in him because he was very fearful about his village and the conditions there, and the Sunil Bhai was living there alone for so many years, and there was a problem in that village, some kind of Naxal, some kind of things were happening there. So he always had in his mind, running parallel in his mind, that he may be murdered. So in an eccentric call in the night, unexpected call in the night, and he got that hunch, oh, Sunil Bhai could be murdered today. And that was this is what is intuition. Now you can apply it for civil services also. So when you read Sumit Sarkar, Bipin Chandra and Guha and so many, and my favorite Grover and Grover, when you read 3-4 books for modern India से, and modern India पे तुमने 4 किताबें मान लो पढ़ी है, अब पढ़ने के बाद you don't remember every line, सब कुछ याद कैसे हो सकता है यार? Humanly it is impossible. But when you look at the question, then that same intuition will come. वो इंट्यूशन अंदर से आता है कि ओह ये हो सकता है, हाँ ऐसा कुछ लग रहा है कि ऐसा कुछ यही होगा. सो व्हेन यू हैव दिस इंट्यूटिव जीनियस इन यू, देन यू क्वालिफाई इन प्रीलिम्स and you made it really big in the mains also, because we do most of the things on the basis of our intuition. Now who have this strong intuition? किसके अंदर में ये इंट्यूटिव जीनियस स्ट्रांग होता है? कौन होता है इंसान? ये इंसान वही होता है जो बहुत मेहनत से पढ़ा होता है, जिसके नोट्स लिखे होते हैं, जो लिखे हुए नोट्स को कम से कम 4-5 बार रिवाइज किया हुआ होता है। ये सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के अंदर में होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ज्योग्राफी पढ़ाने के क्रम में कई बार मुझे ऐसा लगा कि दिस प्लेट शैल नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन। आई थिंक सविंदर सिंह और पी दयाल, आई शुड नॉट नेम देम, दिस आर रॉन्ग, गलत दिखा रहा है ये, ऐसा इंट्यूशन ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता था? और बाद में मैंने उसको देखा तो उसे आई वॉज राइट। I'm not praising myself, but this is what happened. This is what has happened so many times with me while teaching air mass also. CPKU air mass है भाई, continental polar cold stable, तो ये air mass है। तो ये इस तरह के कई जगह पे intuition काम करता है। As a teacher, I have realized उसी तरह से स्टूडेंट के अंदर में भी वो intuition काम करता है। तो I just hope that you are able to make out the very interesting point which I am making today is about the intuitive genius of a student. So work on your intuition. How you will get intuition? When you read more, when you do hard work, when you have a lot of reading, and then you have a lot of practices, then you have intuition. And coming to the third thing, which is even more interesting, and look at this. Fearful and polluted minds. Fearful minds, polluted minds. I like to differentiate. And there are two different points. Since it was all about mind, so I clubbed them into one. ये fearful mind क्या है? What is this fearful mind? तुम एग्जाम में जा रहे हो और तुम्हारे अंदर में एक fear psychosis काम कर रहा है. You are under a particular psychological, stress. that आज एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम जाने के पहले अगर तुमको लग रहा है आज त्यौहार है, द मूड ऑफ फेस्टिविटी व्हेन इट कम्स, देन यू आर द
real student, you have really read well, and you will be doing well at the same time. तुम अगर एग्ज़ाम में जाने के पहले अगर तुमको लग रहा है उत्साह, उमंग, ऐसा कुछ लग रहा है, तो ये समझो कि तुम उस एग्ज़ाम के लायक हो। और फियर अगर क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि तुमने पढ़ा नहीं है, तुम्हारे अंदर में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं वो फियर तुम्हारे परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करेगा। दिस फियर किल्स अस एंड किल्स आवर प्रोस्पेक्ट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। So you have to venture, you have to be, courageous enough. How this courage will come? This courage will come through, again, your reading and reading the right materials. So don't be fearful about the examination. Now I am relating this fearful word with the rural folk and the urban folk. Let's differentiate. Even in intuition theory, the urban people are more intuitive, because they are less fearful, because they are less insecure, so they are more intuitive. The rural people, जो गांव से बच्चे आते हैं हमारे, वो गांव के बच्चे ज़्यादा भयपूर्ण होते हैं, असुरक्षित होते हैं, उनके मन में एक पेरेंटल दबाव भी होता है, पेरेंटल प्रेशर भी होता है। प्यार से ही माँ बाप कह देते हैं, बेटा कुछ अच्छा करना, बेटा एक रोटी एक सब्जी खा करके मैं जीवन का टुकड़ा तुमको बाहर भेज रहा हूँ। अब ये इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट करता है। अब वो बेचारा कहीं किसी फतेहाबाद से उठ करके दिल्ली आया हुआ है, किसी छोटे से कमरे में रह रहा है, उसको रूम भी शेयर करना है, उसके पास एसी भी नहीं लगा हुआ है, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो सही टीचर के पास जाए। मेरा ही प्राइस है, इट इज़ द हाईएस्ट। अब क्यों है इस पर डिबेट नहीं करना मुझे। आई डोंट वांट ट्रॉलिंग ऑन दिस पार्टिकुलर पॉइंट, because I have seen, I do charity, but I do charity in different spectrum. Okay, that's about me, so leave me alone, don't do any trolling. Now हाईएस्ट पेड टीचर्स के पास वो जाने में डरता है, वो सोचेगा कि अरे यार 15,000 यहाँ बच जाएगा। मानते हैं उसका कंपल्सन है ज़िंदगी का, वो 15,000 बच जाएगा, मैं वहीं पढ़ लेता हूँ, इनका नोट्स पढ़ लूँगा, या वो ऐसा कुछ कर लेंगे। तो ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं तो बैकवर्ड ट्रीडिंग है ही ना, पीछे तो ले ही जा रही है ना इंसान को। जब तुम एक आईएएस जैसे एग्ज़ाम के लिए आ रहे हो, तो तुमको यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड यू हैव ऑलवेज टू थिंक ऑफ द बेस्ट ऑल्सो। सबसे अच्छा कैसे हो सकता है ये सोचना है। तो जो गांव से लोग आते हैं वो फियरफुल होते हैं, इमोशनल होने के कारण, या उनके अंदर में वो इनसिक्योरिटी जो असुरक्षा का भाव है उसके कारण, वो यहाँ आकर के दिल्ली में बहुत कुछ अचानक से देखते हैं, तो उनका जो अंदर का भाव है वो सब बदलने लगता है। वो यहाँ पे पढ़ने के बजाय बाहर में चाय पीना, बाहर में ऐसे ऐसे आँख घुमा करके बर्ड वॉचिंग, वो सारी चीज़ें करने में लग जाते हैं। वो ये भी डेवलप करते हैं कि वो उसके साथ घूम रहा है, मैं क्यों नहीं घूम रहा हूँ। समथिंग विच वॉज सपोज टू बी डन एट द स्कूल एंड college level, they start doing it here with civil services preparation. This is one of the biggest cause of their failure. यहाँ आकर के उनका माइंड डेविएट हो जाता है। आने के बाद वो यहाँ पे वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, फैशन चेंज कर रहे हों, या जो भी अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हों, या जो भी अपने वीम्स फैंसी जो उनके आने लगते हैं अर्बन लाइफ का, वो सब चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब लोग ऐसा नहीं करता है, लेकिन बहुत लोगों को मैंने ऐसा करते हुए देखा है। तो आप इसके कारण भी अपने ऊपर स्ट्रेस भी क्रिएट करते हो, और आप कभी भी फोकस्ड नहीं रह पाते हो अपने पढ़ाई को लेकर के। इस बात का ज़रा ध्यान रखना, बिकॉज़ ये बात कई लोगों को हर्ट भी कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि एज ए टीचर मुझे ये बताना चाहिए, और ये ऑनेस्टी भी है कि हम आपको बताएं। पॉल्यूटेड माइंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पॉल्यूटेड माइंड्स का अर्थ क्या है? हमारा मेंटल पॉल्यूशन का अर्थ क्या है? हम कुछ भी पढ़ने बैठते हैं, पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल से, आई एम रीडिंग इंडियन ज्योग्राफी, जियोलॉजी ऑफ इंडिया, भारत का भूगर्भ शास्त्र, और ब्रेन में चल रहा है कि हमारे गांव में जो ज़मीन का विवाद था उसमें हमारे पिताजी को ये करना चाहिए था और चाचा ने ये गलती कर दी, इसलिए विवाद ऐसा हो गया। ये क्या कर रहे हो भाई? ये तो पॉल्यूशन है। ये मेंटल पॉल्यूशन को हटाओ। अगर ये मेंटल पॉल्यूशन नहीं हटेगा तो फिर कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, तुम बस सोचते रहोगे। बहुत सारे लोग ड्रीमी होते हैं,
बहुत सपना देखते हैं. एंड दिस ड्रीमी पीपल आर ऑल्सो द मोस्ट एब्सर्ड पीपल बिकॉज दे आर नॉट प्रैक्टिकल. They will keep creating castles in their mind. They will start writing आलोक, मान लो कि उसका नाम भी आलोक रंजन हो, तो आलोक रंजन ब्रैकेट में फ्यूचर IAS, या अपना फेसबुक पेज ही बनाने लगते हैं. अरे भाई पढ़ो तो पहले क्वालिफाई तो करो, फिर क्वालिफाई करोगे तुम कभी नहीं लिखोगे. कुछ लोग अपने कमरे में ही बड़ा बड़ा अक्षर में क्या क्या लिखने लगते हैं. तो इन चीज़ों से मोटिवेशन की जगह स्ट्रेस क्रिएट होता है. पॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल दिया मैंने, पॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल और सुनो. सम गुड पीपल कैन ऑल्सो बी in a very worst condition. How? I have given this example so many times in my class also. Say, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर आया, your friend is visiting you, and you have certain good sweets you offered him. He had it, he enjoyed, shook hands, and then he separated. Good. Now maybe next 3, 4, 5 days you went to his room and he was cooking chicken or paneer. You can smell it, but before you enter, he closed the ढक्कन वक्कन बंद कर दिया, he closed the lid, and he was just talking to you, not revealing that what was going on before you came. उसने कुछ रिवील ही नहीं किया आपको, और आप स्मेल ले रहे हो कि हाँ यहाँ तो चिकन बना हुआ है. अब ये बताओ कि 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम खराब करके वहाँ से तुम उठ करके दुखी होकर के लौट रहे हो. यू आर गोइंग बैक टू योर रूम कर्सिंग हिम, कर्सिंग दिस वर्ल्ड, थिंकिंग दैट कितना बुरा है ये दुनिया यार, कैसे लोग हैं यहाँ पे, बताओ. अब ये बताओ, ये तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है ना, ये तुम्हारा डैमेज हो रहा है. तुम एक अच्छे इंसान हो, यू आर द बेस्ट पर्सन, यू ऑफर्ड हिम, अब यू वांटेड समथिंग बैक, या तुम्हारे ब्रेन में ये जो आ रहा है ना कि ही शुड ऑल्सो सर्व मी द, अब ये जो आइडिया है, दिस इज पॉल्यूशन. ये पॉल्यूशन भी तुम्हारे ज़िंदगी को खराब कर सकती है. सो प्लीज़ लर्न दिस लाइन, unconditional, unilateral love and support for others, then you are really peaceful. तुम तभी peaceful रह पाओगे. It is very difficult to preach and very difficult to practice, but very difficult to practice. तो ये जो पॉल्यूशन है ना ब्रेन का, इसको ब्रेन से हटाओ. जो फियर है उसको ब्रेन से हटाओ, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी नॉलेज आएगा. और अब हम देखते हैं कि we'll go to the next thing, living condition and future insecurity. Living conditions. When I was teaching behavioralism, I realized that the environment in which we exist, the environment from where we draw our sustenance, it has to be really conducive, and it should be very pleasant. It should be very aromatic. It should be positive. It should be affirmative. It should be so forceful to our minds that our minds have always, cultivating positivism. जो पर्यावरण हमारे आसपास में होता है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, जैसे मान लो मैं इस कमरे में खड़ा हूँ, इस हॉल में खड़ा हूँ, तो हमने इसमें क्या है, हमने इसमें बहुत सारे फ्लावर्स और बहुत सुंदर सा कुछ चीज़ें रखी हुई है. यहाँ कोई भी और अन्य चीज़ नहीं है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करे. तो मैं बहुत पीसफुली, और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे रहना. आप स्टूडेंट हो, आपके पास बहुत रिचेज़ नहीं है और बहुत रिचेज़ की आवश्यकता भी नहीं है. गांव से जो बच्चे आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से जो आते हैं, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. तो दोज पीपल विद लिमिटेड रिसोर्सेज कैन हैव वन गुड बेड शीट and you can wash it after 2-3 days, and you can have a lamp, सुंदर सा लैम्प, सुंदर सा कॉफ़ी मग, एक सुंदर सा बुक रैक, अच्छी अच्छी किताबें, किसी का सेकंड हैंड नहीं. तो तुम भी एक छोटा सा एम्बियंस क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो. उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है. अब मान लो एक रूम है, उसमें तुम एक हो और तुम्हारा एक रूममेट है. अब रूममेट का डेविएशन कुछ और है, रूममेट आकर के यहाँ कुछ और काम कर रहा है, उसको पढ़ना नहीं है. तो since he is part of that environmental system, he will also bring pollution to your mind. You will also start following his traits. You will start learning his traits. Negative चीज़ हम लोग बहुत जल्दी सीखते हैं. When we start learning from him, then maybe your UPSC
dreams will be betrayed and betrayed forever. So please don't do this. Maybe you have to choose the right roommate. You have to have a decorative, not really costly decorative, but you have to have a good room for yourself and good living condition. A lot of people are using library these days. हाँ, it's good. लाइब्रेरी अच्छा है, वहाँ पे जाके तुम पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छा है, तो लाइब्रेरी यू कैन यूज़. लेकिन जो मेरा रियल डिस्कशन है यहाँ पे अबाउट द लिविंग कंडीशन, when you were born, you were in a village or a small town or in a house which was largely anarchical. People were fighting for small reasons in your family. There was a stress. Now your grooming was taking place. So you were 5 years old, 10 years old, 15 years old, 15 years old. Now that was a period when your persona, your personality is actually shaped. So you will shape accordingly as per your parental care, as per your the home environment, as per your the village environment, as per your the surrounding. Now तुम शेप अप कर जाते हो अपने गांव के कल्चर से, अपने घर के कल्चर से, अपने घर के शैली से, बात करने के तरीके से, और उसमें तुम शेप अप कर जाते हो. तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा कहीं ना कहीं उन चीज़ों को परसू करता है, उसी का अनुकरण करने लगता है. नाउ your persona is largely crystallized. When you become 20, 21, you are in a kind of fix. Your thoughts have been, most of the thoughts have been totally crystallized. अब वहाँ से changing yourself for civil services is a big challenge. So what happens then that अगर टीचर मान लो कुछ अच्छी बातें कहा, तो मैंने कुछ अच्छी बात कही, the moment you hear my ideas on a particular thing, on political thing or social issues, you will get a rush of blood according to your own frame, according to your own grooming, and you will counter react. You react most of the time through your inner conversations. तुम्हारे अंदर में कोई बात उठती है, उसके ऑपोजिट बात उठती है. मैंने कोई भी बात कहना शुरू किया क्लास में, तो मैंने देखा है कि गांव के बच्चे जो रहते हैं, जो रूरल फॉक रहती है, वो बैठ करके उसका जजमेंट करना शुरू करते. सही नहीं बोला, ये सही मेथड नहीं है, ये मैथ में इसने क्यों छोड़ दिया, इसने ये नहीं पढ़ाया, दूसरे टीचर ने ये पढ़ा दिया. ये जो कन्वर्सेशंस क्रिएट करता है ना इंसान अपने अंदर में, ये कैसे सक्सेसफुल होगा बताओ, जब ट्रस्ट ही नहीं है, जब आपको बिलीव ही नहीं है. तो ये ऐसा जो मिसट्रस्ट और मिसबिलीव का जो सब कुछ जो आपके ब्रेन में चलता है ना, इसका कहीं ना कहीं लिविंग कंडीशन और आपके प्रीवियस लाइफ, आपके प्रीवियस ग्रूमिंग से भी इसका संबंध रहता है. तो लिविंग कंडीशन जो पास्ट का था उसको तो चेंज नहीं कर सकते. वी कैन नेवर चेंज आवर पास्ट, बट वी कैन अल्टर आवर प्रेजेंट and we can define our future. So let's alter our present, let's be more polite, more humble, more accepting, more peaceful, and more understanding, more forgiveness for all, and then you could be a better person. And when you become a better person, you can thrive, you can do miracles in your life. Please understand this. I really beg, please understand this. क्योंकि एक अच्छा इंसान, हर आदमी सोचता है मैं अच्छा इंसान हूँ, होता नहीं है. हर इंसान यही सोचता है कि उसने क्या गलती या क्या, सब गलती कर रहे हो, मैं तो सबसे बुरा इंसान हूँ भाई, मुझे मालूम है, हर कोई मुझे बुरा ही कहता है, तो मैं बुरा इंसान हूँ, मान लिया मैंने. बट ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है. माई ओनली पर्पस इज दैट हाउ योर मेमोरी बॉक्स शैल बी स्ट्रेंथेंड. तुम्हारा जो मेमोरी बॉक्स है वो कैसे पावरफुल बने. You should be a person who will read once and then twice and going to remember everything, then going to recall everything also. तो रिकॉलिंग भी आना चाहिए ना. मेमोरी बॉक्स में पढ़ने से नहीं होता है कि आपने पढ़ लिया, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, आपका इनपुट और आउटपुट में गैप्स आ रहा है. नेक्स्ट थ्योरी मेरा इनपुट आउटपुट पे ही है. तो इनपुट आउटपुट में जो गैप क्रिएट होता है वो इसलिए होता है कि आपके अंदर में मिसट्रस्ट है, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर में सस्पिशन है, आप ऑलवेज डाउट्स के जोन में रह रहे हो. यू आर डाउटिंग द टीचर, यू आर डाउटिंग द मटीरियल. मैं कहता हूँ कि इवन इफ द टीचर इज़ डाउटफुल, इवन इफ ही इज़ नॉट टीचिंग वेल, स्टिल यू कैन टेक 10%, 20% फ्रॉम हिम एंड यू कैन लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम हिम. अरे गुरु तो वो भी है जो तुमको लिखने के लिए सिखाया. तो जस्ट बी हम्बल इन योर अप्रोच. एंड
one very important thing is your future insecurity. So when you are reading, you are always contemplating कि what to do next. एक तो future insecurity है, whether I will be becoming something or not in my life, whether I will achieve my goal or not. That's one future insecurity. Another insecurity will be that whether if I read this particular chapter, whether this will come in the examination or not, ये आएगा कि नहीं आएगा, कुछ ये भी इनसिक्योरिटी ऑफ माइंड है. इस इनसिक्योरिटी से भी बचना है. तो ये दो तरह की इनसिक्योरिटी से बचना है आपको. ये जो बुक्स पढ़ करके डाउटफुल होने लगते हो, ये नहीं करना है. आप पढ़ो तो आप सब कुछ पढ़ो. यूपीएससी क्या पूछेगी, कहाँ से पूछेगी, कुछ निर्धारित नहीं है. यूपीएससी ने सिलेबस इंडिकेटिव सिलेबस दिया है. वो कुछ ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल स्टेट सर्विसेज की तरह वो बिल्कुल चैप्टर वाइज वही करना है और वही क्वेश्चंस आएगा. ऐसा नहीं होता है. आई टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इन यूपी पीसीएस, इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इन मध्य प्रदेश, इन हरियाणा पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, all the toppers are mostly from Hindi medium background. Just think of it. Because there the syllabus is limited, well defined, and the questions are structured on the basis of the syllabus. They asked you very directly. Now, there will be a question on air mass. So what is air mass, types of air mass? You can go and simply write my notes. लिख दोगे. तो आप देखो हरियाणा का रैंक 1 मेरा स्टूडेंट मोहित राणा. उत्तर प्रदेश में तो लगातार ही आते रहा. अभिनव चतुर्वेदी, अभिनव श्रीवास्तव रैंक 1, फिर मंगलेश दुबे, फिर ज्योति, फिर कितना लगातार ज्योग्राफी से मैसिव रिजल्ट्स आते रहता है. पीसीएस में हो रहा है. यूपीएससी क्या करती है कि दे विल मेक सर्टेन मॉडिफिकेशन इन द क्वेश्चन. जैसे मान लो एयर मास, वायु राशि पे एक प्रश्न आया. नाउ वायु राशि में ही विल add something which is related to the modern contemporary issues. Say there was a heat wave created in Europe. Now it's a subject of climate change. ये जलवायु परिवर्तन का एक विषय है. मान लो ये जो हीट वेव्स आया यूरोप में, अब या पोलर वोर्टेक्स पे आया. अब पोलर वोर्टेक्स में एक टीचर क्या कर सकता है कि वो तो तुमको जेट स्ट्रीम पढ़ाएगा, उसमें वोर्टेक्स कैसे बनता है, उससे वेदर कैसे रिलेटेड है, सब पढ़ाया. अब यूपीएससी ने उसको पूछ दिया कि पोलर वोर्टेक्स हाउ इट इज रिलेटेड विथ द पोलर फ्रंट जेट. मान लो ये क्वेश्चन पूछ दिया. यू स्टार्ट कर्सिंग द टीचर. हाउ द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल. यार कैसे पढ़ाएगा वो तुमको, उसने तुमको सब पढ़ाया है. बट यू आर द वन हु विल प्रोसेस ऑल द मटेरियल एंड देन कलेक्ट योर नॉलेज, देन कॉन्फिगरेट or produce an aggregate of your knowledge and then write an answer. That's the way. That is what is the demand of civil services, and that is where Hindi medium people are lacking. हिंदी माध्यम के लोगों को सबसे बड़ा सेटबैक इसलिए लग रहा है क्योंकि यूपीएससी में जो प्रश्न आ रहे हैं ये प्रश्न डायरेक्ट नहीं होते. ये प्रश्न होते हैं थोड़ा सा करंट से रिलेट करके पूछ दिया. वो कुछ अलग नहीं होता है. मैं एक ज्योग्राफी पे, एक ऑप्शनल पे मैं बहुत अच्छा डिस्कशन करूंगा आफ्टर फ्यू डेज, और मैं बताऊंगा कि यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चंस को लिया और आपने क्यों नहीं लिखा और आप लिखने में कहाँ भटक गए. तो ये बहुत भटकाव आता है उनके लिखने पे. अब ये भी तो एक रियल रीज़न है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को नॉलेज है, मेहनत किया हुआ है, लेकिन यूपीएससी के डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए यूपीएससी में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है. ये वर्नाकुलर लोगों के साथ हो रहा है, सभी जगह हो रहा है. अब ये भी देखना है कि पीसीएस में लोग क्यों क्वालिफाई कर रहे हैं. पीसीएस में हिंदी मीडियम के लोग सबसे ऊपर आते हैं. क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहा है, आज भी आ रहा है. बट आई हैव ए फियर एंड आई विल बी ट्रू ऑल्सो, आई विल बी प्रूव्ड आफ्टर सम टाइम दैट इंग्लिश मीडियम पीपल they also have ventured into, they also are penetrating into the PCS examinations. And very rapidly they are penetrating into it, and they are again increasing the level of competition, and they can ouster the Hindi medium people. When they will ouster the Hindi medium people, Hindi medium के लोग PCS से भी क्यों बाहर होने लगेंगे, उसका कारण बताता हूँ. क्योंकि अगर PCS ने क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर दिया और यूपीएससी के लाइन पे अगर क्वेश्चंस बनाने लगा और तुम्हारे पास उस चीज़ का, तुमको दो फैक्ट को जोड़ने का, दो एनालिसिस को जोड़ने का, दो चीज़ों को रिलेट करने का,
कंटेम्प्रेरी इशूज़ को अपने ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेट करने का या इंटरट्वाइन करने का अगर कैलिबर नहीं है, अगर योग्यता नहीं है, तो आप कैसे लिख पाओगे? तो मुझे तो एक फियर है, आई एम कैरिंग दिस फियर that even in PCS examinations after 3, 4, 5 years maybe the Hindi medium students will be suffering badly. I will talk about solution in my next video, not today, but I have few more points to make. I think I'm taking a lot of time, but still I hope it will just help you guys to work for your success. ये next तो मेरा वही था, input output ratio. This is the input output ratio, and input output ratio मतलब आपने कितना पढ़ा, how much quantum you have studied, 500 pages, 200 pages, 50 pages in a day. Now how much, this was the input. Now output, how much you remember. So what is the qualitative reading of that day? That's the output. Quantitative reading नहीं करना है, qualitative reading करना है. So the quantum of knowledge which you gain is the output. And output is, in the real sense, is one which you can rewrite, reproduce. That's your output. तो जब भी आप पढ़ाई करते हो, whenever you go for studies, you always think of the output. When I read all this, now what is my output? Say I am reading Gandhi. Close the book. Now think of Gandhi. मैं क्या बोल सकता हूँ गांधी पे? What all I gain today? Until you do this exercise, you will never meet your success, dear. So you have to be, all the time analyzing that what is the qualitative gain from your day. आज तुमने क्या गुणवत्तापूर्ण काम किया और कितना सीखा आज तुमने, ये करना होगा आपको. इनपुट आउटपुट रेशियो के बाद मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगा, ये जो मैंने ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस में ये शब्द आता है, सोशियोलॉजी में भी आता है, सारे सब्जेक्ट तो एक म्यूचुअल इंटरकोर्स से ही बने हुए हैं. लैक ऑफ सोशल कैपिटल. नाउ व्हाट इज सोशल कैपिटल? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म. सोशल कैपिटल इज योर कोहेसिवनेस, interaction of different minds. I'm using this concept in your context. Now don't try to judge me from the public administration point of view, or from the geography point of view, or from population resource point of view. Simply take my points with a definite purpose of helping you in getting your greatest success. Look, social capital क्या है? मैंने कहा हिंदी में एक एग्जाम्पल देते हैं. Say there are 10 people, 10 लोग हैं. Now he read polity, chapter 1, he is doing chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Now 5 people read 5 chapters in a day. शाम को एक मीटिंग कर लो. Have a congregation of 5 people on a cup of tea, on a mug of tea. मग स्मार्ट रखना और बैठ करके गैदरिंग करो कहीं पार्क में, कहीं आइसोलेटेड जगह में, ऐसे जगह में नहीं जहाँ पे डेविएशंस हो रहा है, कभी इधर देख रहे हो कभी उधर देख रहे हो. वो पांचों आपस में ऑनेस्टी से अपना अपना पेपर एक्सचेंज कर लेना है और हर व्यक्ति अपने लिखे हुए पेपर को उसको एक्सप्लेन करेगा, उसको समझाएगा और वही नोट्स वो बांट देगा. और उसने नोट्स कैसे बनाए हैं? 2-3 अच्छी किताबों को मिला करके. वो 2-3 अच्छी किताबें क्या है मैं बताऊंगा आपको इन माय कमिंग वीडियोस. तो वो एक कैपिटल क्रिएट हुआ, वो एक कैपिटल स्टॉक क्रिएट हुआ, नॉलेज का स्टॉक क्रिएट हुआ. सो द फंक्शनिंग ऑफ 5 पीपल टुगेदर इन कोहेसिवनेस विथ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इज द सोशल कैपिटल विच यू क्रिएट. So that is what is the social capital which you create for yourself. So when you have this social capital, I have seen people, I have been teaching in Karol Bagh for all those 12 glorious years. I remember all the IITians which came to me, all the DCA students which came to me, all the people from JNU which came in buses in my class, they all formed social capital. And I found them that, oh, they're all working in group and that group dynamics actually worked for them. And they all qualified. I used to find that out of 5 people, 4 will qualify, 3 will qualify, other 2 will be dragged into some kind of state services job.
this was the miracle which was happening in Karol Bagh in central Delhi, and that is what the people there do. So हिंदी मीडियम के लोगों को ये समझना होगा कि आखिर सेंट्रल दिल्ली करोल बाग से इतने रिजल्ट क्यों आ रहे हैं और क्या बेनिफिट मिलता है उस सोशल कैपिटल के क्रिएशन का। तो आप इसको अच्छे से समझो, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करो, म्यूचुअल इंटरेक्शन रखो। नॉलेज क्या है यार? नॉलेज इज द फंक्शन ऑफ इंटरकोर्स ऑफ वेरियस आइडियाज। नाउ व्हेन वी आर 5 people together, we are all discussing things together, then that intercourse goes on, and that is what benefits you. Now all the 5 chapters are with you. पांचों को रात को रिवाइज करो, डिस्कशन has already taken place. Now keep one Sunday for yourself when all 5 will sit again, and from day to evening you can discuss everything. अब ये चीज़ थोड़ा हिंदी मीडियम में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता है। वो कहता है ये तो लिखने ही नहीं आ रहा है, इसका हैंडराइटिंग ख़राब है, मैं तो ज़्यादा ब्रिलियंट आदमी हूँ। खोटा सिक्का ही काम आता है ज़िंदगी में, याद रखना। तो मेक ए ग्रुप ऑफ सच पीपल, make a very diverse group where someone has science background, someone has history background, someone has geography background, someone has political science background, so someone has interest in economy. So when such 5 people are joined together, some 5 people are working together, then the results will be great. Because in economy, that A is going to excel, in geography B is going to excel, in maybe other subjects, science, C is going to excel. So that is what will create your social capital, and that is the only, I feel, is the recourse for the Hindi medium people or the vernacular people. Okay, moving to the next point, which I have brought for you: memorization of facts versus critical learning. This is very crucial. Memorization of fact versus critical learning. What is memorization of fact? So here is a piece of paper, something like these guides and these Pratyuttara Darpan, Chronicle kind of things. जो भी होता है, they provide a fact, they do good work, but that is for the revision to at the last moment, not to begin with those books. Now एक फैक्ट का चार्ट बना हुआ है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, माउंटेन का ऊंचाई, माउंटेन की गहराई, नदी की लंबाई, कौन हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये सब क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है यार। एंड तुम उसमें परेशान हो, यू मेमोराइज एवरीथिंग, यू ट्राई टू क्रैम एवरीथिंग, यू मग अप एवरीथिंग वर्चुअली, and then you remember so many facts, so you are overburdened with the facts. Now these facts will help you in PCS, I agree. These facts will help you in SSC, I do agree, not in civil services, because the demand of civil services is critical learning. What is critical learning? When you take a topic, you have to work this topic in all the dimensions. Something like if you talk about democracy, so democracy has to be worked out in all the dimensions. So what is political democracy? What is social democracy? What is environmental democracy? New term has come. And what is economic democracy? Economic democracy, environmental democracy, social democracy, and political democracy. Now democracy say whether India is a successful country, whether the democracy in India is doing well or not, this political system is doing well or not, if such questions are there, then you shall not be limited to political democracy. तुम अगर सिर्फ राजनीतिक प्रजातंत्र पे लिखने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारा यूपीएससी में तो नहीं होगा, तुम्हारा ये डायमेंशंस ओपन होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 लोग होते हैं, वो पीपल आर, say there are 2 people, A and B, there are 2 people. A understands democracy in all the dimensions, but he doesn't have facts to produce. He's not possessed with all those crucial facts and informations of the recent times. वो आज के वर्तमान के किसी भी फैक्ट से अवगत नहीं है, वो सिर्फ जानता है कि डेमोक्रेसी क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है उसका, वो भावात्मक है, सब्जेक्टिव एनालिसिस करके बैठा हुआ है। और यूपीएससी का डिमांड है बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। सो व्हेन यू आर राइटिंग ऑन डेमोक्रेसी, सो ए इज राइटिंग democracy is by the people, blah blah blah, Abraham Lincoln,
बात कर रहा है उसी तरह से चल रहा है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होता तो ये होता, ये होता तो ये, इस तरह का बात कर रहा है, ये कथा लिख रहा है। कहाँ से आईएएस बनेगा ये कथाकार? टीचर्स को भी समझना होगा इस चीज़ को कि उस कथा में तो कुछ नहीं है। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन की भारत में, इकोनॉमिक इक्वालिटी पे क्या क्या काम हुआ, और इकोनॉमिक स्टेटस कैसे चेंज हुआ, तो लैंड रिफॉर्म में क्या हुआ, तो हमारे जो रूरल डेवलपमेंट के इतने सारे प्रोग्राम्स बने उसमें क्या हुआ, तो हमारे जो टारगेट एरिया अप्रोच थे या एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ का जो अप्रोच था, हमारा जो लिबरलाइजेशन का पॉलिसी आया, ये सबके कॉन्टेक्स्ट में लिखना और सबके एग्जाम्पल्स को सेट करना और सबके तिथि के साथ इवन डेट वाइज उनका अगर एक अच्छा सा अगर एक कॉन्फिगरेटिव नॉलेज हो उस व्यक्ति के पास, तो ही इज़ द जीनियस एंड ही इज़ द वन विल क्वालिफाई इन सिविल सर्विसेज। वही व्यक्ति आईएएस बनेगा। ये सिर्फ समझना इसको कोई हेल्प नहीं करता है। लोग इस पे डिबेट ज़्यादा करते हैं, मैंने देखा है लोगों को, कितने तरह के प्लेट हैं भाई। अरे आलोक रंजन ने तो 8 प्लेट बता दिया, एनसीईआरटी में 7 लिखा हुआ है, फलां सर ढिमकाना सर ने तो 12 बता दिया, एटलस। क्या डिबेट हो रहा है ये? यही तो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है हिंदी माध्यम को। अरे भाई ये कभी पूछेगा ही नहीं, इट विल नेवर बी आस्क्ड दैट हाउ मेनी प्लेट्स आर देयर। ये तो तुम्हारा सिर्फ मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स है। करना क्या है? क्रिटिकल लर्निंग। इफ यू अंडरस्टैंड कि प्लेट है क्या, प्लेट इंटरैक्शन क्या है, प्लेट इज मेड ऑफ क्रस्ट और प्लेट इज मेड ऑफ क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मैंटल, और क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसमें पेरिडोटाइट कहाँ है, उसमें ड्यूनाइट कहाँ है, उसमें बेसाल्ट का लेयर कितने डेप्थ पे मिलेगा, ये जो स्ट्रक्चर पढ़ करके आ रहा है लड़का, और ड्यूनाइट क्यों बना, पेरिडोटाइट क्यों बना, ये लड़का, ये जो स्टूडेंट है ना, ही विल डू मिरेकल्स। अब that is what is called critical learning. So in critical learning, you not only understand the fact, but you work in all the dimensions, and you have capability to go into the history and connect it with the contemporary. So that will create the magic. Okay, I'm taking a lot of time, I feel, but I will be doing. This is very interesting. Another interesting point which I have noted down for you: vernacular languages and related issues. जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तेलुगु मीडियम, गुजराती मीडियम, तमिल मीडियम, all these students are having not access to the true materials, to the most authentic materials, study materials. They are having, because of 2 reasons. A, they are responsible themselves because they hate English. Some of them I have found myself, English से उनको aversion है, अब they don't want to talk about English. अरे इंग्लिश नहीं करेंगे। अरे भाई तुम इंग्लिश में एग्ज़ाम मत दो, लेकिन इंग्लिश में पढ़ो तो पढ़ो, कुछ तो लिखो। अगर ये कैपेबिलिटी नहीं है तो यूपीएससी कैसे क्वालिफाई करोगे? वैसे भी मेंस में एक इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर होता है ना, तो वहीं पे हिंदी मीडियम के लोग, मुझे लगता है कि शायद 1600 पीपल डिसक्वालीफाइड, वहीं पे 1600 लोग पीछे छट जाते हैं, इंग्लिश क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। नाउ द रियल प्रॉब्लम विथ योर कंट्री इज दैट व्हेन यू विल बी पोस्टेड इन केरला और तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर और मेनी स्टेट्स, हिंदी स्टेट्स तो 5 ही 6 है ना। नाउ बाकी जो 20 स्टेट्स हैं वहाँ पे हिंदी इज नॉट द लैंग्वेज यूज्ड। कैसे तुम फाइल्स देखोगे, कैसे पढ़ोगे? तुम्हारा क्लर्क ही तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखने लगेगा, तो यू विल बी एम्बेरेस्ड। तुम आईएएस बनना चाहते हो, अंग्रेजी 4 पन्ना पढ़ना नहीं चाहते हो, ऐसा क्या इंग्लिश में है भाई? अरे जब तुम हिस्ट्री पढ़ सकते हो, जब तुम साइंस पढ़ सकते हो, तो इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ सकते हो? तो सबसे पहले तो आकर के आपको चाहिए कि मैं इंग्लिश में कैसे मजबूत हो जाऊं, और यूपीएससी की तैयारी के पहले कम से कम 3-4 महीना इंग्लिश को दो, न्यूज़पेपर पढ़ो। मेथड्स है इसका, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे करना है इंग्लिश को इम्प्रूव, कैसे बनाना है अपने आप को यूपीएससी के लायक। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डेफिनेटली बात करेंगे। तो आपको पहले तो इंग्लिश से, you should not have an hate theory for a language which is connecting this country, which is integrating this country, which is integrating this world, which is the global language, which is integrating the world, which has made this world a global village. So have respect for English. थोड़ा respect करोगे
तभी वो तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे घर कौन आता है? जिसको तुम रिस्पेक्ट करते हो। तुम दिल में किसको रखते हो? जिसको तुम रिस्पेक्ट भी करते हो। प्यार क्या होता है? प्यार में सबसे पहला क्राइटेरिया है रिस्पेक्ट होता है। हम लोग किसी को भी प्यार करते हैं तो पहले उसमें एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना चाहिए। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर प्यार नहीं है। अब आपको ये समझना है कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का रियल इश्यूज क्या है, क्यों इस लैंग्वेज में मटेरियल नहीं है और क्यों इसमें बहुत अच्छा लोग नहीं कर पा रहे हैं यूपीएससी के लेवल में। उस पर मैं आपका 2 मिनट देखो। यूपीएससी जो क्वेश्चंस क्रिएट करती है, जो क्वेश्चन पेपर बनाती है, यूपीएससी में जो स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, ये जो स्कॉलर्स हैं ये वही क्वेश्चंस बनाती है जो कि बहुत ही बड़े ऑथर्स, इंग्लिश मीडियम के ऑथर्स, ग्रॉस ग्रांट इन ओशनोग्राफी, मैंने क्वेश्चंस देखा है ना, क्वेश्चंस डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम, इमेनेटिंग फ्रॉम ग्रांट ग्रॉस, वहाँ से क्वेश्चन निकल करके आ रहा है। लास्ट ईयर भी एक ज्योग्राफी में क्वेश्चन था, आई एम जस्ट यूजिंग इट एज एन एग्जाम्पल, कि एक क्वेश्चन निकल करके आया कि भाई हाउ द एसिडिटी एंड एल्केनिटी ऑफ द सॉइल अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी। वो ये नहीं पूछ रहा है कि सॉइल एसिडिटी क्या है, एसिडिक सॉइल का क्या पीएच वैल्यू होता है, फैक्ट नहीं पूछ रहा है, वो क्रिटिकल लर्निंग पे चला गया। क्रिटिकल लर्निंग क्या है? प्रोडक्टिविटी को रिलेट करो किससे? एसिडिटी और उसके बेसिक कैरेक्टर से, कैसे प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा ये। नाउ दिस इज यूपीएससी, यही यूपीएससी है। अब वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में क्या प्रॉब्लम है? ऑल द बुक्स एंड मटेरियल्स आर अवेलेबल, जो अवेलेबल हैं दे आर नॉट अप टू द मार्क, दिस इज द रियलिटी। नाउ यूपीएससी इज गोइंग टू प्रिपेयर क्वेश्चंस फ्रॉम द ग्रेट वर्क्स ऑफ द ग्रेट स्कॉलर्स एंड all these books are English medium books. Even the model answers which they prepare, which I feel will be prepared by a group of professors which all belong to the English medium zone. Now all the answers which are model answers which are prepared will be in English language, and the key points will be taken from the source which is English medium. So the source of the question, the source of the model answers all are in English. और हिंदी के किताब को पढ़ना है आपके लिए, हिंदी मीडियम के छात्रों को हिंदी पढ़ना पड़ता है, तो बहुत सारा ट्रांसलेटेड फॉर्म्स आता है, लेकिन वो ट्रांसलेशन में वो मैजिक क्रिएट नहीं होता है। वो चीज़ें ट्रांसलेटेड होकर के जब जाती हैं तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं रहता है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है, वो एनालिसिस नहीं रहता है। जैसे तुम DS लाल, एक क्लाइमेटोलॉजी पे एक बुक है, तो इट इज़ इन इंग्लिश मीडियम ऑल्सो, हिंदी मीडियम ऑल्सो। नाउ यू कैन मैच इट। आई एम सिंपली थ्रोइंग ए चैलेंज टू यू। तुम एक सिंपल सा टॉपिक थॉर्नथवाइट को ही देख लो, तो थॉर्नथवाइट में तुम देखोगे तो इंग्लिश में कुछ और लिखा है, हिंदी में बहुत शॉर्ट करके थोड़ा सा लिख दिया है। तो दिस इनजस्टिस इज विद द हिंदी मीडियम बुक्स ऑल्सो। सो द क्रिटिकल इशू विद द हिंदी मीडियम पीपल एंड द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पीपल आर द मटीरियल, द स्टडी मटीरियल। सो यू हैव नो एक्सेस टू द रियल गुड मटीरियल। सही मटीरियल पे हाथ नहीं डाल पा रहे हो आप, और आपको जो कोचिंग वाले दे रहे हैं, आपको जो भी मिल रहा है मार्केट में, जो उपलब्ध है, जो बाजारीकरण से निकल करके आ रहा है, विच आर कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स बेसिकली। सो यू आर ऑल कैरिंग ए बैग एंड द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑन योर हेड, एंड even I am a coaching, I run also a coaching, so but still I try to do justice with my student. I give my heart and my soul out. Everybody claims that, but my students know it. Second issue, इसमें एक और बहुत important issue है. The second issue is that when you listen to a class, you must go and verify. Teachers का भी एक qualification होना चाहिए. All the people who are teaching in English medium in Karol Bagh in Central Delhi, in Mukherjee Nagar is no more. I don't think there is any English medium teacher except me. There is no English medium teacher taking any class. So the hub of English medium has become the Central Delhi. Now in Central Delhi, or maybe some Hyderabad or some Chennai has become a very good center for English medium, and the Hindi medium centers are decaying with time, like Jaipur is decaying for civil services, Patna has decayed, Allahabad is good for PCS maybe, but for civil services it is again decaying. तो ये जो decay दिख रहा है ना, it is because of somewhere the teachers are also responsible.
मुझे ये बताओ, आई एम आस्किंग ए वेरी हार्श क्वेश्चन, हाउ मेनी इंग्लिश मीडियम टीचर्स आर टीचिंग इन हिंदी मीडियम ऑल्सो? They will all claim that even I can teach in English. They can come on platforms and they can speak out few things. They are preparing and they are working hard. लेकिन वो जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो कोई भी टीचर नहीं है जो कि इंग्लिश मीडियम का हो और हिंदी मीडियम में बैचेस रन करता हो. नॉट ए सिंगल टीचर इज देयर. सो दैट इंग्लिश मीडियम मटेरियल फॉर जीएस इन पार्टिकुलर, इन फॉर अदर सब्जेक्ट्स इन पार्टिकुलर, ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं रुक रही है. तो एक मटेरियल का और टीचर का, टीचिंग का भी बड़ा डिफरेंस आ रहा है हिंदी माध्यम में. मुझे मालूम है पीपल ट्रोलिंग करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे इस बात को लेकर के, लेकिन एक सत्य है, अगर हिंदी माध्यम के लोगों को अपना भाग्य बदलना है तो ह्यूमन मिनिस्ट्री से, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से आप एजिटेशन करो. इसलिए नहीं कि हिंदी मीडियम को कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए कि हिंदी मीडियम में बुक्स उपलब्ध कराया जाए और सारी किताबें जो उपलब्ध हैं, जो मटेरियल इंग्लिश मीडियम में है, उसका ट्रू ट्रांसलेशन और उसका ट्रांसलिट्रेशन नहीं होना चाहिए, उसका भावात्मक रूप से उसी तरह से प्रस्तुतिकरण होना चाहिए हिंदी माध्यम की किताबों में. और एक गवर्नमेंट को सब लोग मिलकर के पिटीशन दो कि जितनी भी किताबें डी स्कूल में चल रही है, जेएनयू में चल रही है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में चल रही है, वो किताबों का हिंदी ट्रांसलेशन हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी दिया जाए. ये सबसे बड़ा मिरेकल क्रिएट करने वाला है. इसका डिमांड करो. आप एजिटेशन करते हो अटेम्प्ट्स के लिए और कुछ और चीज़ों के लिए, इसके लिए भी एक एजिटेशन होना चाहिए. दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे अनुसार से, हमारे प्रोफेशन में कोई भी व्यक्ति आता है और कोई भी व्यक्ति टीचर बन जाता है. कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, कोई ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का कंट्रोल नहीं है. वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड टीचर बन जाता है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक महानायक बन जाता है, एक फिगर बन जाता है, कल्ट बनने लगता है. एंड दे बिहेव इन दिस मैनर ऑल्सो. दे I'm not being personal to anyone. I hope that nobody is going to. I'm just thinking of the future of the Hindi medium students. I have done enough work in my life. और मैं बहुत हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग वन फैक्ट. हिंदी मीडियम पीपल, जितने भी हिंदी माध्यम के लोग हो, वो एक प्रोटेस्ट लॉन्च करो कि जिस व्यक्ति ने, जिस टीचर ने आईएएस का इंटरव्यू कम से कम दिया हो, कम से कम एक बार आईएएस का इंटरव्यू दिया हो, और दूसरा क्राइटेरिया कि वह उसी विषय से हो, उस विषय में उसने कम से कम एमए किया हो या एमएससी किया हो, इसको अधिकार होना चाहिए पढ़ाने का. इसका भी प्रोटेस्ट होना चाहिए. वैसे तो कोई भी आदमी जाएगा, पॉलिटी उठाएगा, उसके शब्द अच्छे होते हैं, वो बढ़िया बोलता है, उसका बढ़िया मोडेस्ट पर्सनैलिटी है, वो बहुत मुस्कुराता है, तो लोग स्टनिंग मोड में उसको देखते हैं. आपको क्या लगता है कि ये सारा जो मॉडल है टीचर्स का मुखर्जी नगर का, ये करोल बाग में वर्क करता है? ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स में वर्कआउट करता है? ये रिजेक्ट कर देते हैं इन लोगों को, लोग वहाँ जा कर के सस्टेन नहीं कर पाते हैं. तो ये जो आपके अंदर का जो अच्छाई है, आपके अंदर के जो अच्छे संस्कार हैं, जो एक टीचर में भगवान देखता है, तो वो टीचर भी अपने आप को भगवान मान ले रहा है. जो बोल रहा है वही लग रहा है कि वही सब ब्रह्म वाक्य बोल रहा है. आप लोग नोट्स को भी वेरीफाई करो. आप एचआरडी में प्रोटेस्ट करो कि सारे इंग्लिश मीडियम के जितनी किताबें हैं उसका ट्रू ट्रांसलेशन मिले. और तीसरा कि जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं इनके बारे में गवर्नमेंट भी कुछ करे, सिर्फ टैक्स न ले. गवर्नमेंट भी ये सोचे, 48% टैक्स ले जाती है, तो ये भी तो सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि टीचर का क्वालिफिकेशन क्या है. आपका प्रोटेस्ट होना चाहिए इस बात के लिए. मैंने आज आपका समय लिया. आई थिंक आई हैव गिवन यू एनफ टाइम टुडे. And I am totally mesmerized because so many people were there with me all these times, and it will be coming on my YouTube channel. तो मैं आपको अब नमस्कार करता हूँ. Thank you for the day. Thank you. Bye bye. Take care.